So today we will start with a new video of class 12 accountancy, chapter 1 NPU, not-for-profit organizations. So firstly we'll study a small introduction, basically the meaning of those organization NPU which are established for a charitable or a social purpose, not with a view of earning profit. These also render services to their members and to the society on voluntary basis. These non-profit organizations (NPO) exist with a special motive or a primary motive of rendering or providing services, such as a club provides sports facilities and a hospital renders medical services. Funds required for the activities of NPO not-for-profit organization are normally sourced or contributed by its members, trustees, etc. as donation, membership fees, and its subscription. In final accounts of NPO. NPO consists of mainly three accounts. Firstly, reception payment account, income and expenditure account, and receipt and payment account. Receipts and payment account is a summary of cash transactions. It records all receipts and payments, whether of revenue or capital nature, and following amounts are transferred to the receipts and payment account. It begins with cash and bank balances in the beginning, and ends with the cash and bank balances at the end of the accounting period. Income and expenditure account. Income and expenditure account is like a profit and loss appropriation account of a business firm. It should be noted that income and expenditure account does not have an opening balance. Closing balance is a surplus or a deficit, which is transferred to the capital fund shown in the balance sheet. Income and expenditure account is prepared on accrual basis, so adjustment related to outstanding expense, prepaid expenses, and etc. transferred to the income and expenditure. As we have studied earlier in class 12, in class 11, balance sheet is a statement that shows the financial position of an organization or enterprise as at a particular date. The method of preparing balance sheet in NPO is similar to that of a business firm. The surplus or deficit as per the income and expenditure account is transferred to the capital fund in the balance sheet, and where opening balance of a capital fund is not given, the same is arrived at by preparing the opening balance sheet. So basically in this, two types of balance sheet is prepared: opening and closing. So now we will start with a few important questions. First we will do question number 55. So here is the question, and the following amounts are of receipts and payments account are given. First is to balance BD, which is 1,02,500. So ये हम ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्टली ओपनिंग बैलेंस शीट में, बिकॉज ये हमारा ओपनिंग अमाउंट है कैश का. देन दिया है हमें टू सब्सक्रिप्शंस 2018, 19, 1920 एंड 2021. सो जो इसमें हमारा 2019 और 20 का है 2,05,000, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंड बाकी हम अभी लीव कर देंगे. टू डोनेशंस 54,000, ये भी हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, भी क्रेडिट साइड में. इसके बाद है हमारा टू प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, वो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे 95,000, और लेस ड्रामा एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि हमारा ड्रामा एक्सपेंसेस हमें दे रखा है 45,000, वो हम इससे लेस कर देंगे, तो ये बचेगा हमारा 50,000. इसके बाद है हमारा टू सेल ऑफ वेस्ट पेपर. सेल ऑफ वेस्ट पेपर भी 4,500, ये भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे. इसके बाद है हमारा पेमेंट्स में है बाय सैलरी 60,000. बाय सैलरीज भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे. बाय एक्सपेंसेस 7,500. तो एक्सपेंसेस भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे. अब है हमारा बाय न्यूज़पेपर 15,000, वो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड में. इसके बाद हमारा आता है बाय म्यूनिसिपल टैक्सेस 4,000, वो भी हम
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अब इसकी हमारी एक एडजस्टमेंट है, वो है म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30th June। प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 1,000। अब जो है ये बिगनिंग का हम भर चुके हैं, तो ये हम अपना लेस कर लेंगे और जो हमने 30th June तक बढ़ा है वो हम ऐड करेंगे। तो ये दोनों कट गए हैं, तो इसलिए हमारा 4,000 अमाउंट बचा है म्युनिसिपल टैक्सेस का। जो ये टैक्स था इसमें हमारा 1,000 प्रीपेड टैक्स था, जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में रखेंगे क्योंकि प्रीपेड टैक्स इज एन एसेट, सो वी विल पुट दिस हियर। अब आता है हमारा चैरिटी का 35,000 अमाउंट है, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में शो होगा। देन अब आता है बाय इन्वेस्टमेंट 2 लाख। इन्वेस्टमेंट 2 लाख, हमारा इन्वेस्टमेंट 2 लाख था, 2 लाख इन्वेस्टमेंट था और इसकी एडजस्टमेंट है कि 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, वी विल शो इट ऑन अ क्लोजिंग बैलेंस शीट विच इज 2 lakh and accrued interest is 6% at 5 months। So we will do it 2 lakh into 5 divided by 12 into 6 by 100 which is equals to 5,000। 5,000 we have showed as accrued interest which is also asset, so amount is 2,05,000। By electricity charges is 14,500, so this will also show in income and expenditure account। And then the closing cash balance CD will show in the closing balance sheet। So now we come on the subscription 2018 and 19 का सब्सक्रिप्शन 4,000 है, 2019-20 का 2,05,000 है, तो 2020-21 का 6,000 है। जो हमारा 2019 और 20 का सब्सक्रिप्शन है वो विल शो, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ये हमारी एडजस्टमेंट है कि देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 ₹5,000 still in error for the year ended March 2019। so इसमें हम करेंगे कि ये 500 मेंबर्स है और ईच मेंबर इज पेइंग 500 एज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन। सो 500 इज ₹2,50,000, जो हम उसे 2,50,000 को मतलब 2 लाख मतलब जो हमारा अमाउंट दे रखा है 2019-20 का 2,05,000 उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,50,000 से, और जो हमारा अमाउंट बचेगा ₹45,000 वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के OS सब्सक्रिप्शन एंट्री डाल के 45,000 उधर ऐड कर देंगे। और ये वाला अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट के एसेट में भी आएगा फॉर 2019-20। अभी जो हमारा अमाउंट है 2018-19 4,000, अब इसका हमें कहा है उन्होंने कि 5,000 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। So we will add 5,000 in this 4,000 and then we will show this in the opening balance sheet as an asset which is OS subscription 9,000। और जो इसमें हमारी लास्ट एक एडजस्टमेंट है वो है कि 5,000 आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरीज, वो हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 में शो करेंगे। सॉरी माई बैड, एक एडजस्टमेंट और थी कि बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स ऑफ ₹5 lakh, सो वी विल शो इट in both the balance sheet as building 5 lakh, opening balance sheet में भी 5 lakh और closing balance sheet में भी 5 lakh। सो अब हम सारे अमाउंट्स को ऐड कर देंगे और जो हमारा टोटल है 6,12,500 वो हमारा कैपिटल फंड है। सेम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट में करेंगे। जो हमारा इस साइड का टोटल है वो है 3,63,500। अब सरप्लस निकालने के लिए हम क्रेडिट साइड का टोटल को ऐड सारे अमाउंट को ऐड करेंगे और उसका टोटल है हमारा 3,63,500 और डेबिट साइड का हमारा टोटल है 1,00,000
1,41,000 1,41,000 जो हम उससे माइनस कर देंगे तो हमारा सरप्लस आ जाएगा 2,22,500। तो लास्ट में हम क्लोजिंग बैलेंस शीट का अमाउंट टोटल करेंगे, टैली कर देंगे आंसर से, वो हमारा आ जाएगा इन सबको अमाउंट का ऐड करके जो हमारा आएगा 8,46,000। और इस साइड में हम अपना कैपिटल फंड जो है 6,12,500 और सरप्लस जो हमारा 2,22,500 हम दोनों को इसमें ऐड करेंगे जिसका टोटल है 8,35,000 और इन सब का ऐड करके हमारा आ जाएगा 8,46,000। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। इसके भी हमें अमाउंट लिखे हुए हैं सारे। तो अब इसका है कैश इन हैंड ओपनिंग, ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा 2600 ओपनिंग बैलेंस शीट में। एंट्रेंस फ़ी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी क्यों इनकम है 3200 एंट्रेंस फ़ी। बाई डोनेशन फॉर अ बिल्डिंग के फ्यूचर में हम देखेंगे कि कोई इससे हमारी ना पेमेंट हो रही है ना हमारा कोई फंड जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में डाल देंगे 23,000। टू लॉक का रेंट है हमारा 1200, तो वो भी हमारी इनकम है 1200, तो इनकम में आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारी एक लाइबिलिटी है 7,000, हम इसे लाइबिलिटी में डाल देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट हमारी एक इनकम है, तो 3,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। टू सब्सक्रिप्शन हम थोड़ी बाद में करेंगे क्योंकि इसके एडजस्टमेंट हमें गिवन है। अब हमें गिवन है रेंट 18,000 और इसके एडजस्टमेंट है कि रेंट ₹1,500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 1,500 स्टिल अनपेड। अब हमारे अनपेड तो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, रेंट हमारी एक्सपेंडिचर 18,000 उसमें आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग डाल देंगे लाइबिलिटी की। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइबिलिटी होती है। इसके बाद वेजेस हमारी इनकम हमारी एक्सपेंडिचर है वो 7,000 एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। बिलियर्ड टेबल 14,000 हमारा एसेट है, तो हम इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे 14,000। देन इसके बाद फर्नीचर, अब हमारा आ जाएगा फर्नीचर हमें 10,000 अमाउंट दिया है पेमेंट में, और इसके एडजस्टमेंट है कि फर्नीचर वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन फर्नीचर ₹15,000। तो ये ओपनिंग हमारा फर्नीचर है, ओपनिंग फर्नीचर हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, एसेट है 15,000, और दिया है कि फर्नीचर वैल्यू है 22,500 ऑन 31 मार्च 2020। अब ये हमारा है क्लोजिंग फर्नीचर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 22,500। अब इसमें हम करना है कि हम एक अलग सा इसकी वर्किंग नोट करेंगे क्योंकि हमें इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया है और फर्नीचर का अमाउंट भी है जितना हमने पेमेंट उसकी दी है। तो वर्किंग नोट ये है कि डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इज इक्वल्स टू ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू हम 15,000 दी है, परचेजेस हमने 10,000 की इसको पेमेंट करी है, और क्लोजिंग वैल्यू है हमारी माइनस 22,500। तो इसका अमाउंट हमारा आया 22,500। तो ये हम डाल देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,500। अब हमारा इसके बाद आता है इंटरेस्ट हमारी एक एक्सपेंडिचर है, तो हम उसके एक्सपेंडिचर में डाल देंगे 2,000। सिमिलरली हमारा आया बाय पोस्टेज 1,000, इसके भी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 300 और 200, तो 300 और 200 हम इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे 300 और 200 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और इसकी भी अलग से एक वर्किंग नोट होगी, वो है कि ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्स। अब ओपनिंग हमें दे रखा है 300, 1,000 हमारी परचेजेस है माइनस 200, तो हमारा जो या 1100 आएगा अमाउंट, इसे हम डाल देंगे टू पोस्टेज कंज्यूम 1100 एक्सपेंडिचर।
अब आगे है बाय सैलरी। सैलरी हम डाल देंगे 24,000 एक्सपेंडिचर में। इसके बाद हमारा आता है कैश इन हैंड क्लोजिंग विच इज़ 4,000, सो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे 4,000 कैश इन हैंड। अब हम आएंगे सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन हमें 40,000 अमाउंट दिया है जो पहले हमारा उसमें आ चुका है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम में 40,000। अभी हमें दिया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 is 1,200 and to 2,300 on 31st March 2020। सो जो हमारा 2019 का है 1,200, तो वो हम डाल देंगे ऐड, हम लेस कर देंगे 1,200 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31st March 2019 लेस कर देंगे 1,200, और जो 2,300 है वो हम ऐड कर देंगे। तो जो हमारा अमाउंट इसको आया है कैलकुलेट करने के बाद वो है 41,100, और जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का था वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे 1,200, और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन था जो हमारा 2,300 वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। अब लास्ट में हमारा आता है कि द क्लब हैज लोन ऑफ ₹20,000 एट द रेट 10% per annum year ended which was taken in the year ended 31st March 2019। तो इसका जो हमारा है 20,000 लोन, वो हम लोन आ गए 20% करके 20,000 डाल देंगे लाइबिलिटी में, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। फाइनली हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को साइड का हमारा टोटल करके आएगा 21,500। इन दोनों का हमारा टोटल करके आएगा 21,500, और इनको हमारा इस सही साइड को हमारा टोटल करके लाइबिलिटी साइड को आएगा 21,500, और उसको हमारा टोटल करके हमारा आएगा अमाउंट 18,900। सो हम इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा कैपिटल फंड डेफिसिट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 2,400। इसी तरह हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर को हमारा टोटल करके आया 54,600। एक्सपेंडिचर को हमारा टोटल करके आया 54,600, और जो हमारे इनकम है इनकम को हमारा टोटल करके आया 48,500। सो इससे हमारा बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम निकल जाएगा विच इज़ 6,100। इसी तरह हम क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। लाइबिलिटी साइड में हम लोन 20,000 डोनेशन एंड रेंट आउटस्टैंडिंग फीस को लाइबिलिटी ऐड करेंगे, और एसेट साइड में हम डेफिसिट और कैपिटल फंड डेफिसिट को हम ऐड करेंगे, वो हमारा 8,500 आया। फर्नीचर सबको हमारा ऐड करके अमाउंट का टोटल आएगा 51,500। सो हमारा आंसर आ चुका है। एंड हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे 58, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारा कैश इन हैंड, सो इसमें हमारा कैश इन हैंड दिया है फर्स्ट चैप्टर 2019 71,300, वो हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट में विच इज कैश इन हैंड 71,300। बाकी हमारा जो सब्सक्रिप्शन है अमाउंट 4,17,960 है, जो हमारा आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम में, और इसका जो हमारा वो दे रखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू 2,400 2,800, जो हमारा 2,800 दिया है वो हमारा ड्यू है, तो हम इसे लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे 2,800 और 2,400 लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हमारा है जो वो हम 640 है वो हम ऐड करेंगे, और जो 1,000 रुपीज़ है वो हम लेस कर देंगे। बेसिकली इस वाले जो मतलब क्या बोलते हैं हमारा टॉपिक है, इसमें हमारा एक फार्मूला यूज़ होता है जो हमें पहले, वो है हमारा टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। इसमें हमारा जो होता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीविंग एडवांस द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो इसलिए हमने ऐड करा है एडवांस क्योंकि बिगनिंग ईयर का है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर,
और लेस करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, इसलिए हमने लेस करा है। सो बेसिकली इसमें डोनेशन 1,45,000 है, तो हमारी इनकम है जो उसमें आ जाएगी इनकम एंड स्पेशल अकाउंट में। फिर अब इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000 दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 70,000 दिया है, और इसमें बोला है कि एट द रेट 7% फॉर द फुल ईयर। इसमें हमारा एक वर्किंग नोट होगा जो है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। अब 70,000 हमें दे रखा है, तो हम उसे 1000 डिवाइड करके 1 इंटू 1000 अपॉन में 70 करेंगे, जो हमारा आया है रुपीज़ 10 लाख। 10 लाख की हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है, वो हमारी एसेट है 10 लाख, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे और वही सेम अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। और अब टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी इशू, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी इशू का अमाउंट है 1,04,500, वो हमारा इसमें इनकम में आ जाएगा कि हमारी इनकम है वो। और उसके बाद हमारा अमाउंट है बाय मेडिसिन 3,05,900। अब हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखा है, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 88,100 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 97,400। अब इसका हमारा है कि मेडिसिन है जो हमारी, उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक कर देंगे और लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है, तो हमारा इसका आंसर आ गया 2,96,600। बाय डॉक्टर्स ऑनरी 90,000, ये हमारा एक एक्सपेंडिचर है 90,000, सो हमारा एक्सपेंडिचर में आ गया। बाय सैलरीज 2,75,000, ये हमारी एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। बाय पेटी एक्सपेंसेस है हमारा 4,0610, ये भी हमारी एक्सपेंडिचर है। बाय इक्विपमेंट्स 1,50,000, अब हम इसका भी हमारा यही होगा कि हमारा ओपनिंग में आ जाएगा 2 लाख, हमारा इक्विपमेंट का अमाउंट दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग 2,12,000 और 3,16,000, जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। इक्विपमेंट का हम अलग से एक वर्किंग नोट ऐड करेंगे, देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग इक्विपमेंट दे रखा है। ओपनिंग इक्विपमेंट है जो हमारा है 2,12,000, क्लोजिंग इक्विपमेंट है 3,16,000, तो हम ओपनिंग इक्विपमेंट डाल देंगे 2,12,000 डेबिट साइड में और क्लोजिंग क्रेडिट साइड में। और इक्विपमेंट परचेज करा है 1,50,000 का, वो इसको कैश करके आ जाएगा डेबिट साइड में, तो हम इनको बैलेंस करके हमारा जो इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन आ रहा है अमाउंट 46,000, जो हम डाल देंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट में इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। टू एक्सपेंस ऑफ चैरिटी शो, एक्सपेंस ऑफ चैरिटी शो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हम उसे डाल देंगे एक्सपेंडिचर साइड में। क्लोजिंग कैश हम डाल देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हमारी है कि बिल्डिंग कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन है 4 लाख का, हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, वो हमारी आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों में, क्योंकि अमाउंट 4 लाख है। और जो इसकी डेप्रिसिएशन है वो दे रखी है, इसमें दे रखा है कि कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग को हम ओपनिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारी 20,000 होगी हमारी डेप होगी, तो बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 20,000 एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। उसके बाद हम दोनों साइड ऐड करके हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा, बैलेंस फिगर 17,70,160, और इनको ऐड करके हमारा सरप्लस आ जाएगा 59,790 का। सो इसे हम डाल देंगे लाइबिलिटीज में, हमारा आ जाएगा कैपिटल फंड 17,70,160 और सरप्लस 59,790। इस साइड का हमारा टोटल 18,30,950, तो हमारा आंसर